Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Aggarwal. तो आज करते हैं फिर कुछ examples from the actual CUT papers. We have already discussed a lot about CUT, so not going to repeat those things again. तो आज directly start करते हैं अपनी problems के साथ. Problem number 36, the movement of the couple. अब movement of the couple is formed with the forces. Obviously forces जो होती हैं वो एक दूसरे के opposite होती हैं जब भी couple formation होता है. यहाँ से ये आपका F है, यहाँ पे ये आपका माइनस एफ है. ये माइनस एफ फोर्स हो गई और ये एफ फोर्स हो गई. व्हाट इज फोर्स एफ गिवन टू बी 5i प्लस के एंड ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव इज विच इज गिवन माइनस 5i माइनस के. ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी. ए इज 9 माइनस 1 2 एंड बी इज 3 माइनस 2 1. एंड यू शुड नो दैट द फॉर्मूला फॉर द मूवमेंट ऑफ द कपल इज एफ cross AB. F cross AB. And F is nothing but 5i plus K. Cross product लेना है इसका. And AB क्या आ जाएगा? B minus है. That is 3 minus 9i plus minus 2 plus 1j plus 1 minus 2k. So which gives me 5i plus K into minus 6i minus j minus k. और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम सबको आता ही है. i j k 5 0 1 minus 6 minus 1 minus 1. इसे कंप्यूट कर लीजिए, गेट योर आंसर. तो हमने देखा आयोटा हमारा कितना आ गया. i इज ये गया डिटर्मिनेंट नो ये 0 आ गया और ये 1 आ गया. सो 1i आना चाहिए. 1i obviously it has to be the fourth choice. iota का coefficient 1 आ गया, i का coefficient 1 आ गया, so it has to be fourth choice, but calculate कर लेते हैं और भी minus j जैसे determinant की तरह आप निकालते हैं. minus 5 plus 6 and plus k. You know how to do this as if you are expanding a determinant. minus 5, so that is I minus j minus 5k. I minus j minus 5k. But जैसे मैंने पहले बोला था, we are doing it for a competitive examination in which choices are given to us. So we need not solve whole of the question till the end. Okay. जैसे मुझे पता चला I का coefficient 1 है, I'll just directly go for the fourth choice. क्योंकि उसी में खाली I का coefficient 1 है, इसमें -1, इसमें -1, इसमें 11. So I know none of these three can be my answers. My answer has to be the fourth choice. Why should I waste my time in calculating coefficient of j and k? तो ये अप्रोच रखनी है आप लोगों ने. ओके आपने मेरे और पार्ट्स अटेंड करे होंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि मैं इसी तरीके से आंसर करना आपको सिखाता हूं. बिकॉज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन द एग्जामिनेशन शुड बी टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. देन कम्स 37th प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ द डिफरेंस इज 0. एज इट इज क्वेश्चन में C2 में आया था, बट डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स शुड अगेन बी ए वेक्टर. ओके The difference of vector should again be a vector. तो difference is a zero vector लिखना चाहिए था वैसे, but आप सबको पता है यदि a is b then a minus b is 0. Obvious है. तो इस मीन्स पहली स्टेटमेंट सही है. दो vectors said to be identical if their difference is 0. If the difference is 0 then obviously they are same. Velocity is not a vector quantity, which is wrong. Speed is not a vector quantity. But velocity is a vector quantity. So second is also right. तो A और B दोनों सही हो चुके हैं मेरे. ठीक है ना. दूसरा गलत है बिकॉज उसने कहा इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. They saying it's not a vector quantity, so B is wrong. तो जिस भी चॉइस में B दिया हुआ है वो गलत है. ये चॉइस गई, ये चॉइस गई. C है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. के बट डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज A डॉट B इज AB cos थीटा. देखो बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं दैट इज a डॉट बी अपॉन a इज इक्वल टू b cos थीटा. दैट इज a कैप डॉट b इज इक्वल टू b cos थीटा. इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग, इट गिव्स मी द प्रोजेक्शन ऑफ b along a. इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ b along a. So the geometrical interpretation of dot products is the projection, whereas geometrical interpretation of cross product is the area. You know that a cross b is the area of the triangle whose adjacent sides are a and b. Okay, I hope you know about it, and so many things which you do in vectors classes, but here we know that it has to do with something with the projection. So not an application of projection is galat.
तो C is wrong, and if C is wrong, then it should be my answer without even bothering to solve D. बट हम तो सॉल्व करेंगे ही सीखने के लिए. डी क्या है? द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज. आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज अलोंग द ग्रेडियंट. आपको यहाँ देखने की जरूरत भी नहीं है. एंड ग्रेडियंट क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. देखते हैं यहाँ क्या लिखा है? द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ लाइन फंक्शन इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन. इट्स वेरी ट्रू. सो डी इज राइट. So the maximum space rate of change takes place along the gradient, which is nothing but the directional derivative. So let us do the next example now. Example 38. The unit vector orthogonal to vector this and making equal angles with the x and y axis. Again, we will be using our smart methods, not just the traditional ones. जिन्हें use करते हैं normally teachers teach करने के लिए, but you know our approach is different. इन्होंने जैसे ही कहा दे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद एक्स एंड वाई. जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाने का मतलब है एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेंगे. आई और जे के नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं. देखिए एक्स आई वी ऑलवेज राइट इट लाइक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. हमने वेक्टर लिखा. एक्स एक्सिस को नॉर्मली हम आई एथ एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को जी एथ एक्सिस कहते हैं, जेड एक्सिस को के एथ एक्सिस कहते हैं. इसलिए इसके कोफिशिएंट हम एक्स वाई जेड कह देते हैं. ये जो एक्स वाई जेड है ना, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज. And you know the relationship between direction ratios and direction cosines. And what are direction cosines? Those are cosines of the angles which a vector makes with the positive direction of x axis, y axis and z axis. तो डायरेक्शन रेशियो में एंगल की बात आती है क्योंकि यदि डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे. और क्योंकि ये वेक्टर x और y दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा है तो इसके जो x एंड y एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो सेम होंगे. इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे. और ये x और y होते हैं डायरेक्शन रेशियोज. इसका मतलब i एंड j के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए मेरे आंसर में. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, गलत है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, गलत है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हो सकता है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हो सकता है. तो इन दो में से मुझे एक डिसाइड करना है. आपने देखा आई एम नॉट सॉल्विंग इट. यू नीड नॉट सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन. बट यदि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए यू कैन विजिट सैनमैक्स की वेबसाइट एंड आप देख सकते हैं प्रिंटेड सॉल्यूशन. बट इट इज ऑफ नो यूज. You have not to do it by traditional methods. Do it by the smart methods, which I always teach to my students. तो जैसे हमें दिखा कि इक्वल एंगल्स विद एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसका मतलब आई एंड जे के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो दो चॉइस एलिमिनेट हो गई. अब 1 और 2 में से मुझे अपना आंसर उठाना है. प्लस माइनस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है एक हमेशा अलॉन्ग द डायरेक्शन होता है, एक अपोजिट द डायरेक्शन होता है. तो प्लस एंड माइनस तो चलता है. बट मुझे देखना है कि 2i + 2j आना है या i + j आना है. देख लेते हैं. यूनिट वेक्टर जो मेरा आंसर है दैट इज ऑर्थोगोनल टू दिस. ऑर्थोगोनल मींस एट 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब जो भी मेरा आंसर है उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होना चाहिए. तो पहले हम ऊपर वाले को ट्राई करके देख लेते हैं. खाली इतने पोर्शन के बाहर वाले को मैं छोड़ रहा हूं. डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकाल के मैंने देखा -2 यू नो द डॉट प्रोडक्ट +4 -2 आई नो इट इज 0. ये सही है. बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन सेकंड का भी डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं. बट हमें पता है वो सेम 0 नहीं आएगा. +2 -2 not equal to 0. So I know first is my answer without even bothering to solve it. And that is the approach we should develop in you. And that is the best approach. और जब आप कंप्यूटर प्रोफेशनल बन जाते हैं जब भी आपको वो बहुत हेल्प करेगी because you know how to tackle a problem in the best possible manner, like which most of the people do not know. चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. 39th. Given below are two statements. The angle between the vectors, पढ़िए से देखिए and try to do it on your own. The angle between these two vectors is π/2. Again, π/2 का मतलब है क्या वो ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है. और डॉट प्रोडक्ट 0 निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का सम, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम लेते हैं. आपको पता ही है पिछले क्वेश्चन में मैंने इसे करा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 + 2 × 2 4 -3 -1 0 है. ठीक है, एंगल π/2 है, ऑर्थोगोनल है. स्टेटमेंट 1 तो सही है मेरी. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया. फर्स्ट एंड थर्ड में से आई हैव टू डिसाइड द राइट वन. वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c इज कोप्लेनर विद a एंड b. वैसे दिखाई दे गया गलत है. जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना दो वेक्टर्स का या तीन का, बट दो का मान लेते हैं. यदि हमारे पास कोई वेक्टर होता है l क्रॉस m, तो l क्रॉस m इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ l एंड m. बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब a क्रॉस b क्रॉस c, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b क्रॉस c.
but B cross C is perpendicular to the plane of B and C. ठीक है ना, बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C. अब आप खुद सोचिए, यदि A परपेंडिकुलर B हो, A हो परपेंडिकुलर B को और B हो परपेंडिकुलर C को, तो A एंड C आर पैरेलल. पैरेलल मींस लाइंग इन द सेम प्लेन, इजंट इट? ओके, ये A ले लो, A को परपेंडिकुलर B है, B परपेंडिकुलर C को, देन A एंड C आर पैरेलल. तो इट मींस जैसे B क्रॉस C हमने देखा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C, और A क्रॉस B क्रॉस C इसको परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस C इज कोप्लेनर विथ B एंड C. बट उन्होंने किसके साथ दिया कोप्लेनर विथ A एंड B? नो, इट इज रॉन्ग. It is not coplanar with A and B, it is coplanar with B and C and it is perpendicular to A. तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी गलत है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सही तो नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया. It's so interesting, you know, it increases your logic a lot. It increases your common sense a lot, okay? And then comes the last problem of this particular lot. If the unit vectors A and B are inclined at an angle 2 theta such that mod of A minus B is less than 1. Whenever you have mod, you always take its square. Okay? आप इसे स्क्वायर ले लीजिए बेसिकली, और नहीं भी स्क्वायर लेना, चलिए स्क्वायर नहीं लेते, बाद में स्क्वायर रूट लेना पड़ जाएगा हमें, हम राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं. A माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं आपके लिए. दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 A डॉट बी. और दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ओके? और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, माइनस 2 कॉस 2 थीटा. So that is 2 into 1 minus cos 2 theta. And half the angle formula से कितना हो गया? 2 sin square theta. That is 2 mod of sin theta. So obvious. So mod of A minus B is 2 mod sin theta. A very, very simple example. Now they want it to be less than 1. They want it to be less than 1. It means they should have this to be less than 1. तो इसे यहाँ put कर देते हैं. It means 2 mod sin theta should be less than 1. It means mod of sin theta must be less than half. Okay. और आपको कौन सा पोर्शन दिया हुआ है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड वी ऑल नो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का कर्व ऐसे जाता है. ओके, 0 पाई, यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 पे 1 हो जाता है. और भी पॉइंट्स देख लेते हैं, हमें इंटरेस्ट है 1/2 से 1/2 होता है 30 पे, मतलब पाई बाई 6 पे. तो ये आ गया आपका पाई बाई 6 और ये आ गया आपका पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6. वो कहता है हाफ से 1 चाहिए आपको, हाफ से 1 चाहिए, दे वांट इट टू बी लेस देन हाफ. तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, ये दो पोर्शन मेरे आंसर होने चाहिए. दे वांट मॉड ऑफ साइन थीटा टू बी लेस देन हाफ. वैसे तो साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो मॉड लिखूं या ना लिखूं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई नो इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन हाफ. और हाफ हो जाता है पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 नहीं इंक्लूड होना चाहिए. 0 से ओपन इंटरवल पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 से ओपन इंटरवल शुरू करके पाई तक जाना है. तो इट मीन्स दिस शुड बी माई आंसर. ठीक है ना, 5 पाई बाई 6 से पाई तक जाना पड़ेगा मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में. 0 से पाई बाई 6 का मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है. पहला है 0 से पाई बाई 2, दूसरा ओपन सेमी ओपन इंटरवल, इसे हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं. एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है, जस्ट फॉर ये रेफरेंस. ओके, ये एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, क्योंकि पाई पे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी नो साइन पाई इज 0, साइन 5 पाई बाई 6 इज हाफ. दे आर नॉट इंक्लूडिंग हाफ, दे वांट इट टू बी लेस देन हाफ. तो ये जो कर्व डिक्रीजिंग होगा जिस पोर्शन में, दैट इज द ओनली पोर्शन इन विच दे आर इंटरेस्टेड. दे वर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन ऑल्सो, बट दिस इज नॉट गिवन इन द चॉइसेस. सो आई विल जस्ट गो फॉर द चॉइस 2. So have a very good speed of solving problems, of communicating your things, and try to grow. Okay, I'm always there with you. All the best. See you soon.